नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम में मैं रंजन सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपने 4 दिन के बराक घाटी के दौरे पर AIDUF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल सिलचर पहुंचे। आज सिलचर कुंभीग्राम हवाई अड्डे पहुंचते ही बदरुद्दीन आजमल संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बराक घाटी दौरे की अपने उद्देश्य को बताए। साथ ही आज उन्होंने NRC, मदरसा सहित स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा के विषय में क्या कुछ बोले, हम एक एक बातों को आप तक सिलसिलेवार तरीके से पहुंचाएंगे। फिलहाल आइए देखते हैं सिलचर से हमारे संवाददाता रानू दत्त का यह रिपोर्ट। AIDUF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल जब आज सिलचर के कुंभीग्राम हवाई अड्डे पहुंचे तो उनको बड़े गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। उनको काफिले को सिलचर से कुंभीग्राम तक कम से कम हजारों समर्थकों के बीच लाया गया। आइए पहले जान लेते हैं उनका बराक घाटी दौरे का उद्देश्य क्या है, उन्हीं का जुबानी। মানে কি উদ্দেশ্য সফরের এবার? ওয়ার্কার্স মিটিং হব, ওয়ার্কার্সসকলৰ মিটামিটি হ'ব, মিলামিলি হ'ব, কেণ্ডিডেটসকল আহিব, সিসকলৰ দেখা দেখি হ'ব। কেনেকুৱা মানুহ আছে, পঢ়া লেখা আছে না জাহিল আছে। तो सुना आपने, उनका यह साफ कहना है कि बराक घाटी से इस बार उनकी दल से जो उम्मीदवार बनने जा रहे हैं असम विधानसभा चुनाव के लिए, वह पढ़े लिखे हैं या जाहिल हैं, उसका भी वह जांच करेंगे। इसका मतलब ये साफ है कि अगर आप सोच रहे हैं कि इस बार असम विधानसभा चुनाव के मैदान में AIDUF की तरफ से आप उतरने वाले हैं तो आपको शिक्षित होना पड़ेगा। आइए अब हम जान लेते हैं कि कांग्रेस के साथ महागठबंधन के विषय पर आज बदरुद्दीन आजमल ने क्या कहा। কংগ্ৰেছৰ লগত আনুষ্ঠানিক আটাত কেতিয়া শুনিব পাম? কংগ্ৰেছৰ লগত আটাত আমি কেতিয়া শুনিব পাম? এতিয়া তেখেতৰ প্ৰভাৰী মিষ্টাৰ জিতেন্দ্ৰ সিং আহিছে, সি তাত যাব, গৈ ৰাহুল গান্ধী বাকীচবৰ লগত কথা পাতি তাৰপিছত আমাৰ এইটো কৈ গৈছে মানে UDF আৰু মহাগঠবন্ধন হ'ব, হলে বাকী দিল্লীত বৰাকত কেইটা সিট আপোনালোকে ডিমান্ড কৰিব যদি মহাগঠবন্ধন হয় বা বিশেষকৈ কাছাৰত মহাগঠবন্ধন হ'ব ইনশাআল্লাহ? সিট কেইটা ডিমান্ড কৰিব? ডিমান্ড আমি টোটাল কম से कम 12টা পাম। कांग्रेस के साथ महागठबंधन के विषय को लेकर आज बदरुद्दीन आजमल ने यह साफ किया कि गठबंधन तो होने जा रहा है, लेकिन इस फैसले पर दिल्ली से राहुल गांधी का मोहर जरूरी है। अगर इस बार डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा को कैबिनेट में बैठना है तो उन्हें बांग्लादेश या पाकिस्तान जाना पड़ेगा, क्योंकि इस बार दिसपुर की कैबिनेट महागठबंधन दखल करने जा रही है। आज ऐसा क्यों कहा AIDUF सुप्रीमो बदरुद्दीन आजमल, आइए सुनते हैं। কালি HBS কৈছে যে আপনার মাদ্রাসা বনাটো সপোনে তাকে সেইবোৰ আপনি কি করেন? চাওক, হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আজিকালি পাগল হৈছে। এই মত কৈছে কি যে কেবিনেট মই গৈ পাকিস্তান কৰিব লাগিব या বাংলাদেশ কৰিব লাগিব। সি যেতিয়া ইলেকশ্যন আহে 8-10 দিন 12 দিনৰ কাৰণে বাংলাদেশৰ গৈ ক'ত থাকে আমি নাজানো, মতলব তাৰ লিংক বাংলাদেশৰ লগত আছে। এইবাৰ সি জিকিব নোৱাৰিব, সি জানে। সি কেবিনেট কৰিবলৈ যদি হয় তো পাকিস্তান বা বাংলাদেশত যাব লাগিব। আমি ইয়াৰ মানুহ ইয়াতে থাকি মখৰ মানুহ অসমৰ গদ্দি দখল কৰি कैबिनेट আমি করিম, হি দেখিব ইনশাআল্লাহ, চাই থাকিব। आज NRC एवं मदरसा को लेकर बदरुद्दीन आजमल का क्या कहना था, आइए वो भी सुन लेते हैं। আজি হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যে ইণ্টাৰভিউ দিছে সেইটোৰ কথা আপোনালোকে খুদক সেইটো দেখিছে না দেখা নাই? দেখা নাই আপোনালোকে না? চলি আছে NRCৰ ওপৰত তেখেত কি কৈছে? তেখেতৰ ব্যৰ্থতা, তেখেতৰ চৰকাৰৰ ব্যৰ্থতা, তেখেতৰ চিফ মিনিষ্টাৰৰ ব্যৰ্থতা তেখেত 100% কবুল কৰিছে। কৈছে আমি একো কৰিব পৰা নাই। আর হাজেলাই পাওয়ার পৰা লৈ মাথালৈকে পইচা লৈ সব উল্টা কৰি দিছে। আগত ই কৈছে কি NRC কাৰ কাৰণে বনিব? বাংলাদেশীসকলৰ কাৰণে হ'ব, বিদেশীসকলৰ কাৰণে। এতিয়া আজি সি কৈছে পাহৰি গৈছে। এনে মিছা মাত একবাৰ মানুহে মাতিলে 1000 মাত মিছা মাতিব লাগে। এতিয়া কৈছে আমি মোগলসকলক ৰহিব নিদিম, NRC মোগলসকলৰ কাৰণে নিদিম। আপোনালোকে কওক, NRC মোগলসকলৰ কাৰণে নিদিম? মোগলৰ কাৰণে নহয়। আর যদি হাজেলায় তার আন্ডারে ইন ইজ এ মিনিস্টার, ক্যাবিনেট মিনিস্টার, ডেপুটি চিফ মিনিস্টার, হি কি কইছে বলে চিফ মিনিস্টার হে সারি দিন মাতি হাজেলাক আনিব পারা নাই, তার পিছত 4 দিন পিছত আইছে। এটো 100% চিফ মিনিস্টারের ব্যর্থতা, তার ব্যর্থতা নিজৰ। এনেকুৱা সরকার চলাইছে। আজি কৈ আছে যে NRC একদম 100% ভুল হয়েছে। 5 বছর আপোনালোকে কি কৰিলে? দাদা আপোনালোকে रोजगार দিব পাৰা নাই, আপোনালোকে বর্ডার সিল কৰিব পাৰা নাই, আপোনালোকে নদী ভাঙা সমস্যা সমাধান কৰিব পাৰা নাই,
আপোনালোকে NRC সমস্যাৰ সমাধান কৰিব পৰা নাই তে আপোনালোকে কি কৰিলে এইটো অসম চুক্তি আপোনালোকে গ্ৰহণ কৰিব পৰা নাই ই মিনিষ্টাৰ আছে NRC লৈ অসম চৰকাৰ ব্যৰ্থ নে? এক মিনিট অসম চৰকাৰ আর স্পেশালি হেমন্ত বিশ্ব শর্মা আর সর্বানন্দ সোনোৱাল দুইজনই ব্যর্থ হয়েছে কেন ই কি কৈ আছে বোলে আমি অহাবাৰ আহাৰ পিছত আমি এইটো খুব জবরদস্তি যাতে ধরিম আর ধরি আমি ঠিক করব মতলব আরও একবার 5 বছর আপনাদের আমাক চান্স দিম আপনি 100% ব্যর্থ হয়েছে তারপিছত আমি চান্স দিম আমি পাগল নেকি অসমৰ মানুহ চান্স নিদিয়ে অসমৰ মানুহ সবকে ভৰ্তি কৰিব হ্যাঁ আৰু এটা কথা হৈছে SR কেলেংকাৰী আৰু বহুত ডাঙৰ কেলেংকাৰী হৈছে ইহঁতে একো কৰিব পৰা নাই এতিয়া কি কৈছে আমাক আৰু 5 বছৰ দিব লাগিব আমি 5 বছৰ তে সেইদিন কি কৈছে বোলে আমি অহাবাৰ যেতিয়া জিকি আহিম তাৰপিছত আমি এইটো কৰিম এইবাৰত 5 বছৰ আপোনালোকে কি কৰিলে আচ্ছা আপুনি একো কৰিব নোৱাৰে ভুলা হৈ গ'ল অসমৰ কাৰণে গম পাইছে আপোনালোকে চাইড লওক আপোনালোকে নিচত নামক গাড়ী আমি আহিলে আমি দেখাই দিম এই সব সমস্যাৰ আপুনি আপোনালোকে ক্ষমতাত আহিলে কি মাদ্ৰাসা লৈ কি কৰিব মাদ্ৰাসা যেটো বন্ধ কৰাৰ যেটো সিদ্ধান্ত লৈছে আপুনি কি কৰিব মাদ্ৰাসা হি কৈ আছে বুলি একো কিছু খুলিব নোৱাৰে আজমান সাহেব কেবিনেট মিনিষ্ট্রি ডিসিশন ল'ব নোৱাৰে কেনে তুমি তো গাড়ীত নাথাকিবা তুমি যাবা বাংলাদেশ या পাকিস্তান আমি ইয়াত কি কৰিম আপুনি তাক টেলিভিছনত বহি দেখিবা আমি কি কৰি আছো ঠিক আছে वक्त हो चला है एक छोटा सा ब्रेक का। ब्रेक के बाद बाकी है और कई अहम खबरें, आप बस बने रहिए हमारे साथ। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग। अगर आने वाले हैं आपके घर में भी मेहमान तो जल्द से ले आए बिरला गोल्ड चाय, जिसके कन कन में है ताजगी वो सुगंध और दाम औरों से है कई गुना कम। जी हाँ, जयश्री टी इंडस्ट्री कछार की प्रोडक्शन बिरला गोल्ड टी, पहले आजमाए फिर करें विश्वास। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। असम मिजोरम सीमांत इलाकों में BOP यानी बॉर्डर आउटपोस्ट बैठाने के उद्देश्य से आज दोनों राज्यों के उच्च स्तरीय पुलिस अधिकारियों के बीच बातचीत हुई, साथ ही इलाकों के मुआयना भी किया गया। इस अवसर पर असम पुलिस IG दीपक केडिया, दक्षिण असम प्रांत का DIG दिलीप कुमार दे, कछार जिला उपायुक्त कृति जिल्ली, कछार पुलिस अधीक्षक भंवर लाल मीना, वन अधीक्षक सनीदेव इंद्रदेव चौधरी, वन विभाग के CCF सुमन महापात्र, धोलाई भाजपा की ओर से भूषण पाल, शशांक चंद्र पाल एवं कमलेश दास मौके पर उपस्थित थे। 4 नवंबर को महाराष्ट्र पुलिस रिपब्लिक भारत न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार की थी। उसके बाद अर्नब गोस्वामी एक वीडियो क्लिप में ये कहते हुए दिखे कि पुलिस उनके साथ मारपीट की है, उनको चिकित्सा की जरूरी है। इस अवसर पर वह बिन जूते के ही बाहर आए हुए थे। आइए पहले देख लेते हैं वह वीडियो क्लिप जिसमें अर्नब गोस्वामी ये कहते हुए दिख रहे हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि सिलचर में ABVP के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार की पुतला फूंका और इस अवसर पर कार्यकर्ताओं का क्या कहना था। This is the injury on my arm. You can clearly see it. I've thrown it to the doctor. Who injured you, Arnab? It was Pradeep Patil and Sachin Vaze and 7 other policemen. They surrounded me. They held me by the scruff of my neck. They pushed me. I have come here, as you can see, without shoes here today. Yes, you are without shoes. I'm without shoes because It's against a Supreme Court order. they did not let me take my shoes. I've been assaulted. I want the people of the country to know. Don't push me. Don't push me. I want the people of the country to know. I've been assaulted. तो सुना आपने अर्नब गोस्वामी क्या कुछ कह रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं सिलचर में आज ABVP के कार्यकर्ताओं ने महाराष्ट्र सरकार का पुतला क्यों फूंका और इस अवसर पर उन्होंने क्या कुछ कहा। তাকে মহারাষ্ট্র সরকারের আজকে আমরা পুষ্পপুতল জ্বালাইছি। আমরা এটা দেখছি যে আজকে গণতান্ত্রিক
গণতন্ত্রে আজকে মারছে উদ্ধব ঠাকরে, এটা আজকের থেকে না, খালি এটা কয়েকদিন আগের থেকে শুরু হয়েছে। এটা সাধুরে মারার থেকে শুরু হয়েছে, সাধুরে মারার থেকে শুরু হয়েছে, গণতান্ত্রিক মারা সাধুতারে মারার থেকে শুরু হয়েছে। তারপরে দেখা গেছে যে তারা সরকারের মধ্যে আরেকটা খুন হয়েছে সুশান্ত সিং রাজপুতের। তারপরে দেখা গেছে আজকে অর্ণব গোস্বামীরে তারা ইলিগেলি তারা আজকে ইয়ে করছে, কিতা কয় ঢুকাইছে, ইয়েতে আন্ডার অ্যারেস্ট করছে তারা। আমরা এটা আজকে প্রতিবাদ জানাইবার লিগে আইছি। আমরা সবসময় এই ধরনের কোনো কাজ হইব, দেশের মধ্যে এই ধরনের কোনো ধরনের কাজ হইব যেখানে মধ্যে আমরা গণতন্ত্রের উপরে হাত দিব, রক্ত দিয়ে হাত দিব, আমরা তখনই সব একলগে বাইরিমু। আমরা বাইরিয়া সব সময় এটা রেখেছি, আমরা কথা কইমু ভারত মাতা কি জয়। आज कछाड़ भाजपा किसान मोर्चा के सांगठनिक विस्तार के उद्देश्य से एक सभा का आयोजन किया गया। कछाड़ जिला समिति के अध्यक्ष मानव सिंह की अध्यक्षता में हुई इस सभा में राज्य स्तरीय समिति के कार्यकर्ता भी उपस्थित हुए। सभा का संचालन करते हुए कोषाध्यक्ष असीम भट्टाचार्य एवं राकेश रंजन तिवारी को विशेष रूप से देखा गया। आइए देखते हैं। आपको क्या चाहिए संगठन से? बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं जो हमको बोलते हैं सर ये है, हमको मतलब इतने दिन से हम काम में लगे हुए हैं, पार्टी कर रहे हैं, हमको सर कुछ सुविधा हो जाए। क्यों नहीं? सरकार हमारी सरकार चल रही है, तो हमारे कार्यकर्ता का काम नहीं होगा तो किसका काम होगा? तो होना ही चाहिए, मैं बोलता हूँ होना चाहिए। और अभी नहीं होगा तो कौन सी सरकार में होगा? दूसरे के सरकार में तो हमको घुसने भी नहीं देता है, वो भी होना चाहिए। लेकिन सबके दिमाग में ये क्वेश्चन आता रहता है और कोई भी कार्यकर्ता का सकल से हम पता लगते हैं कि क्या हुआ, थोड़ा उदास दिख रहे हो, उसका जवाब तुरंत आता है, फटाक से आता है, बोलता है नहीं भाई सर इतने दिन तो। राहुल गांधी एक जनसभा को संबोधित करते हुए ईवीएम मशीन का नाम एमवीएम बताया। उन्होंने ईवीएम मशीन का नाम क्यों एमवीएम बताया, आइए सुनते हैं। ईवीएम उसका नाम ईवीएम नहीं है, उसका नाम एमवीएम है, मतलब मोदी वोटिंग मशीन। वो ई ऐसे ही लिखा हुआ है उसमें, वो एमवीएम है, मोदी वोटिंग मशीन। मगर इस बार बिहार में युवाओं में गुस्सा है, युवाओं के दिल में गुस्सा है। तो चाहे वो ईवीएम हो चाहे वो एमवीएम हो, गठबंधन जीतने जा रहा है। आने वाले दीपावली के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल अपने दिल्ली वासियों के लिए क्या संदेश दिए, आइए सुनते हैं। पर भी हम लोग सब लोग मिलके दिवाली मनाएंगे, पटाखे नहीं जलाएंगे, किसी भी हालत में अपने को पटाखे नहीं जलाने। अगर पटाखे जलाएंगे अपने ही बच्चों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं हम लोग, अपने ही परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं, अपने दिल्ली के परिवार की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। पटाखे नहीं जलाने, दिवाली एक साथ मनाएंगे। इस बार दिवाली के लिए हम अलग इंतजाम कर रहे हैं। दिवाली वाले दिन 14 तारीख को 7:39 से हम दिल्ली के सारे लोग एक साथ, दिल्ली के 2 करोड़ लोग मिलके लक्ष्मी पूजन करेंगे। मैं अपने मंत्रियों के साथ दिल्ली में एक जगह लक्ष्मी पूजन शुरू करूंगा 7:39 पे। कुछ टीवी चैनल उसका सीधा प्रसारण करेंगे। मैं आप सबसे अपील करता हूं, दिल्ली के मेरे सभी भाइयों बहनों, मेरे सभी दिल्ली परिवार के लोगों से अपील करता हूं कि आप सब लोग उस वक्त अपना टीवी ऑन करके अपने अपने घर में अपने अपने परिवार के साथ मिलके बैठ के हम साथ वहां पे पंडित जी मंत्रोच्चारण करेंगे और आप उसके साथ साथ अपने अपने घर में लक्ष्मी पूजन करें। इस बार बिहार का चुनाव नीतीश कुमार के लिए अंतिम चुनाव है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये हम नहीं बल्कि खुद नीतीश कुमार ही बता रहे हैं। बिहार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कुछ ऐसा ही कहा, आइए सुनते हैं। और जान लीजिए आज चुनाव का आखिरी दिन है, अब परसों चुनाव है।
और ये मेरा अंतिम चुनाव है। अंत भला तो सब भला। अब आप बताइए, वोट दीजिएगा ना इनको? हाथ उठा के बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम इनको जीत का माला समर्पित कर दें, जीत का माला समर्पित करें। भाजपा के चाणक्य माने जाने वाले तथा वर्तमान गृह मंत्री अमित शाह अपने 2 दिन के दौरे पे बंगाल पहुंचे हुए हैं। इस अवसर पर आज उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत करते हुए बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर जमकर बरसे। आइए सुनते हैं। उनकी प्रतिमा को श्रद्धांजलि देकर मेरे 2 दिन के बंगाल दौरे की शुरुआत हुई है। कल रात से मैं बंगाल में हूं। जहां पर भी गया इसी प्रकार का उत्साह, इसी प्रकार का स्वागत दिखाई पड़ता है। एक और तो ममता सरकार के प्रति भयंकर जनाक्रोश दिखाई पड़ता है और दूसरी ओर श्री नरेंद्र मोदी के प्रति एक आशा और श्रद्धा दिखाई पड़ती है कि बंगाल के अंदर परिवर्तन श्री मोदी जी के नेतृत्व में ही आ सकता है। जिस प्रकार का दमन का चक्र विशेषकर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर ममता सरकार ने चलाया है, मैं निश्चित रूप से देख रहा हूं कि ममता सरकार का मृत्युगण बच चुका है। आने वाले दिनों में यहां भारतीय जनता पार्टी की 2/3 बहुमत की सरकार बनने जा रही है। मैं आज बंगाल की जनता को अपील करने आया हूं कि बंगाल एक सरहदी प्रांत है। देश की सुरक्षा बंगाल की आंतरिक सुरक्षा के साथ जुड़ी है। देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, बंगाल के युवा को रोजगारी देने के लिए और बंगाल के गरीब लोगों को दारुण गरीबी से बाहर निकालने के लिए इस सरकार को उखाड़ कर फेंक दीजिए। एक मौका भारतीय जनता पार्टी को दीजिए। हम आने वाले दिनों में यहाँ पर सोनार बांग्ला की रचना करने के लिए मोदी जी के नेतृत्व में भरसक हैं। नॉर्थ ईस्ट आवाज टाइम टू टाइम पे आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल फिर कुछ नई खबरों के साथ आप लोगों की समक्ष उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।